اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزوں، یہ کلمہ نجات کا کلمہ ہے، اور میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ نجات جو مسیحیت میں پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ عقیدہ کفارہ جو مسیحیت میں پایا جاتا ہے، وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتا۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سی کاپیز کی ہوگی، لیکن جو عقیدہ مسیحیت کا عقیدہ ہے نجات کے بارے میں، وہ بہت ہی مختلف ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خون بہائے معافی نہیں۔ Without the shedding of the blood there is no remission of sin۔ اور ہر ایک چیز شریعت کے مطابق خون سے پاک اور صاف کی جاتی تھی۔ جب میں دیکھتا ہوں اس سارے منظر کو، اس دوسرے کلمے کو کہ آپ کا اور میرا مسیح مصلوب صلیب پر لٹکا ہوا ہے، اور اس کے دائیں اور بائیں دو ڈاکو ہیں، لیکن اگر ہم متی کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ڈاکوؤں نے اس پر ملامت کی۔ ادھر لوکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ دو ڈاکو تھے، جبکہ کچھ کامنٹیٹرز بتاتے ہیں کہ دو صلیبیں یسوع مسیح کے ایک ہاتھ پر تھیں، اور دو صلیبیں ایک ہاتھ پر، اور درمیان میں یسوع مسیح کی صلیب نصب تھی۔ اور جب ہم نے اس سارے اکاؤنٹ کو پڑھا ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایک تو یسوع مسیح کو تانے دینے لگا، کیا تم مسیح ہے؟ اس کو بہت سی باتیں کرنے لگا، لیکن ایک نے کہا کہ ہم تو اپنے کیے کا پا رہے ہیں۔ یعنی اس نے کارما کی ڈاکٹرن، جو کہ شاید تھوڑی سی ہندوازم سے ریلیٹ کرتی ہے، کہ ہم جو کچھ ہوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کا کیا پا رہے ہیں۔ Your decision decides your destiny۔ خدا کا بندہ ڈاکٹر مائک موڈاک کہتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اگر میں چاول ہوں تو میں گندم ہوں، یہ کبھی پاسبل نہیں۔ میں گناہ ہوں اور راست بازی نکالوں، یہ پاسبل نہیں۔ جو ہم ہوتے ہیں ہم وہ کاٹتے ہیں، چاہے وہ ہمارے رانگ ڈیسیجنز ہیں، وہ ہمیں غلط طریقوں کی طرف لے کر جائیں گے۔ اور جب میں اس سارے منظر کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہے ہم اپنے کیے کا پاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی گناہ نہیں۔ وہ جو گناہ سے ناواقف تھا ہمارے لیے گناہ بن گیا، تاکہ ہم اس میں ہو کر باپ کی راست بازی بن جائیں، کس میں ہو کر خدا کے بیٹے مسیح میں ہو کر باپ کی راست بازی بن جائیں۔ ہم اپنے کیے کا پا رہے ہیں، لیکن یہ گناہ سے ناواقف ہے۔ اور پھر یسوع کو کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ وہ جانتا تھا اس کی سفرنگ، اس کے دکھ، اس کی تکلیفیں، اس کی اذیت ایک بڑے جلال کے لیے تھی، تاکہ وہ باپ کے دانے ہاتھ پر اونچا کیا جاتا، مردوں میں سے جی اٹھتا۔ جیسے پالوس رسول کہتا ہے کاش کہ اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو جان سکوں اور اس کے دکھوں کے ساتھ مشابہت پیدا کر سکوں۔ صرف آج کا دن یسوع مسیح کے دکھوں کے ساتھ دکھوں کے اندر مشابہت پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں روز بروز ہمیں اس کی سفرنگ کو اپنی سفرنگ سمجھنا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے ہونا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ آپ یہاں تک کہ ایماندار بھی آپ کو لان تان کریں گے، آپ کو تانے دیں گے، لیکن آپ سب کی ایک اپنی اپنی پرسنل واک ہے جس پر آپ کو چلنا ہے۔ اگر آپ کے پاس یسوع مسیح کا تجربہ نہیں، بے شک آپ ایک مسیح کی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، سوری یو آر ناٹ اے کرسچن، یو آر ناٹ پارٹ آف دا چرچ۔ بے شک آپ چرچ میں آئیں، ممبرشپ لیں، آپ سب چیزیں کریں، یو آر ناٹ پارٹ آف دا چرچ۔ کیونکہ چرچ کی ڈیفینیشن یہ ہے پاک لوگوں کی جماعت، بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت، مقدس لوگوں کی جماعت۔ اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں تو آج بھی میرے ساتھ
फिरदौस में होगा। यीशु मसीह ने उस शख्स को जिसने उसे कहा कि हम तो अपने किए का पाते हैं, उससे कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये एक नजात का कलमा है और यीशु मसीह से नजात की यकीन दहानी कराता है। मैं 100% श्योरिटी से कहता हूं, आज अगर 100 लोग होंगे तो उसमें से 3 या 4 लोगों को पता है कि वो सेव है, वो नजात याफ्ता है। खुदा ने उनको गुनाहों से आजाद किया है, उनके गुनाह धुल गए हैं, वो पाक साफ हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ एक टाइम की वॉशिंग की जरूरत नहीं, उस तौबा के अंदर चलने की जरूरत है। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। नजात की यकीन दहानी, एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन खुदा करवाता है, खुदा का बेटा करवाता है। यीशु मसीह ने क्या कहा है? दरवाजा क्या हूं? कौन है दरवाजा? यीशु मसीह ने कहा दरवाजा मैं हूं, और वो कहता है राह भी मैं हूं। ये रास्ता आप देख रहे हैं सारे, वो कहता है ये रास्ता भी मैं हूं, ये दरवाजा भी मैं हूं। आप जब चर्च में एंटर होते हैं तो किस रास्ते से एंटर होते हैं? वो कहता है रास्ता भी मैं हूं, दरवाजा भी मैं हूं। और ये वही दरवाजा है जिसको यूहन्ना ने मुकाशफा की किताब के अंदर 4 बाब में लिखा, मैंने फिर एक खुला दरवाजा आसमान पर देखा और खुदा ने कहा कि ऊपर आ जा। उसने कहा दरवाजा मैं हूं, किसी और के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम, क्या नीम मसीही, क्या हिंदू, क्या दूसरे मज़ाहिब के लोग, सब निजात पा सके। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन। और यीशु मसीह उसको फिरदौस में लेकर गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, उस वक्त फिरदौस जमीन के लोअर पार्ट्स में वाक़या थे, अंडरवर्ल्ड था पूरा आलम अरवाह। इसके 5 हिस्से थे। पहला पैराडाइज, दूसरा वॉर्ड ऑफ डेड जहां मुर्दे रहते हैं, उसके बाद वॉर्ड ऑफ डीमंस जहां पर बदरूहें रहती हैं, उसके बाद तरतुरुस, हीना, और उसके बाद हेडिस जिसको शेओल भी कहा गया है, यानी आग और गंधक की झील। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो नीचे के इलाका में उतरा और कैदी रूहों में मुनादी की। जब यीशु मसीह मसलूब हुआ, उसने अपनी रूह बाप के हाथ में सौंप दी, तो वो नीचे के इलाका में उतरा और इस कैदी को भी साथ लेकर गया। और आराम की जगह पर भी लोग थे और दूसरी तरफ दुख की जगह पर भी लोग थे। जब हम अमीर आदमी और लाजर की कहानी को देखते हैं तो एक लाजर आराम की जगह पर है और अमीर आदमी अजाब की जगह पर है, और उनके दरमियान एक बहुत बड़ा गढ़ा वाक़या है। यीशु मसीह आराम की जगह पर दाखिल हुआ और वहां पर एक चीज पूरी हुई। ज़बूर 139 में लिखा है, अगर मैं पाताल में भी बिस्तर लगा लूं तो तेरी प्रेजेंस वहां पर भी है। वो नीचे के इलाका में उतरा, कैदी रूह के दरमियान मुनादी की। वो कैदी रूहें कौन सी थी? पुराने अहद की सारी, जितने पेट्रियार्क्स, जितने नबी सब गुजरे, सबकी स्पिरिट्स को फिर ऊपर लेकर गया। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब वो नीचे उतरा, उसने कैदी रूहों के दरमियान मुनादी की और उनको लेकर ऊपर चला गया। अब जमीन पर फिरदौस वाक़या नहीं है, लोअर पार्ट्स में भी नहीं है। 4 हिस्से तो होंगे, लेकिन अब कोई शख्स अगर मरता है फिजिकली तौर पर और वो खुदा के साथ चलता है, वो ईमानदार है, वो रास्तबाज है, वो नए सिरे से पैदा हुआ है, तो वो सीधा खुदा की हुजूरी में जाता है। और मैं ये जरूर चाहूंगा कि हम सबको पता होना चाहिए कि हम निजात याफ्ता हैं। खुदा ने हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है, अपने बेटे को कुर्बान देकर बचाया है। यही मसीहत का अकीदा निजात है और इसी के वसीला से हम यीशु मसीह के बगैर हम बाप के पास भी नहीं आ सकते। यीशु मसीह जिस पर चाहता है उस पर बाप को खोलता है और जिस पर चाहता है उस पर नहीं खोलता। इसीलिए आकर कितने लोग गैर निजात याफ्ता भी हैं। अब जितने गैर निजात याफ्ता है उसके लिए खुदा ने चर्च को मुकर्रर किया है कि चर्च
रीच आउट करे। पर सॉरी, इतने ज्यादा चर्चेस हैं पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन 0% इवेंजलिज्म और 100% म्यूजिक। लेकिन यीशु मसीह उस सलीब पर लटके डाक से कहता है, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ आज ही वो वक्त है, आज ही वो बहाली का वक्त है, आज ही तौबा का वक्त है। अगर आज हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो उसका लहू हमें तमाम नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। वो हमें पाक साफ करेगा, वो हमारे गुनाह धोएगा, और हमें किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं, बकरे छकरों की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा फिदिया यीशु मसीह ने दिया है और हम आजाद किए हुए लोग हैं और हम डिफरेंट हैं। ये चीज लाजमी याद रखिएगा। हम कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हमें बहुत परसिक्यूट किया जाता है, हम माइनॉरिटी हैं। हाँ, हम डिफरेंट हैं, हम नमक हैं, लेकिन हमारे काम नमक जैसे नहीं। अफसोस ये है। लेकिन यीशु मसीह के हुक्मों पर चलना, जैसे फॉरगिवनेस का कलमा पादरी साहब ने सुनाया, हम फॉरगिवनेस के ऊपर भी नहीं चलते। अगर हम इन चीजों को, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना शुरू करेंगे तो जरूर नजात के साथ अपने अच्छे काम भी करेंगे। तो ये सोने पर सुहागा है, और जरूर है कि खुदा हमें फिरदौस में अच्छी जगह पर रखे। आइए तो हम अपने सरों को झुकाएंगे।